Hello everyone. So in your science, the third chapter atoms and molecule, and we start your topic new mole concept. Take an example of the reaction of hydrogen एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. तो जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो ये क्या गिव करता है वाटर मॉलिक्यूल. एंड दिस hydrogen there are two molecules and atoms is four and oxygen one molecule and atoms are two and water two molecules and जो हाइड्रोजन है उसमें फोर एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के टू ऑक्सीजन का ओनली वन एटम्स है. सो द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट first point, two molecule of hydrogen combine with one molecule of oxygen to form two molecule of water. जहाँ पे two molecules hydrogen के combine होंगे one molecule of oxygen से वो क्या give करेंगे two molecule of water. And second point is 4 mu hydrogen molecule combine with 32 mu of oxygen molecule to form 36 mu of water molecule. So we can enter from the above equation that the quantity of a substances can be characterized by its mass or the number of molecule. तो मैंने पहले भी आपको समझाया था mole concept is based on how to determine the object, their quantity and their mass, and we count the molecules and atom that are based on mole concept. But a chemical reaction in equation indicate directly the number of atoms or molecule taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer the quantity of substance in term of the number of its molecule or atom rather than their mass. So, a new unit mole was introduced. तो मोल से हम क्या करवाते हैं किसी भी जो मैटर है किसी भी एलिमेंट है तो उसका जो मास होता है उसको हम किससे शो करते हैं मोल से शो करते हैं. तो इसकी यूनिट क्या होती है किसी भी जो सब्जेक्ट होगा कोई भी मैटर होगा जो उसका मास होगा उसको हम किससे मेजर करेंगे मोल से. वन मोल ऑफ एनी स्पीसीज इज एटम्स. सो in this picture firstly we talking about the mole value. 1 mole equal to 6.022 multiply 10 to the power 23. So firstly we understand 1 mole equal to 6.022 10 to the power 23 molecules. Firstly, we understand 1 mole equal to 6.022 multiply 10 to the power 23 molecules. So हमें ये याद करना है. इस चैप्टर का जो मेन बेस है वो इसी पे बेस्ड है. हम किसी भी चीज़ कोई भी एटम्स का हमें अगर मोल फाइंड आउट करना है तो उसका क्या होगा किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मैटर का. तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 molecules. Let we see 1 mole of carbon atom 6.0 multiply 10 to the power 23 atoms of carbons, and 1 mole of hydrogen atom same 6.022 multiply 10 to the power 23 atoms of hydrogen, and 1 mole of any particles atom molecule science. So 6.022 10 to the power 23 number of that particles, and 1 mole of molecules 6.022 10 to the power 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल. तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है किसी भी मैटर का किसी भी एटम्स का किसी भी पार्टिकल्स का अगर हमें 1 मोल फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट दिस पार्टिकल एंड दिस मॉलिक्यूल. सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स 12 gram of carbon atom because the carbon atomic mass is 12. So the 1 mole of carbon atom is 12 gram of carbon atoms. 1 mole of hydrogen atom 1 gram of hydrogen atoms, and 1 mole of any particle relative mass of those particle is gram. तो मोल कॉन्सेप्ट जो मेन बेस है वो क्या है किसी भी चीज़ को काउंट करना किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना उसके एटम्स एंड उसके मॉलिक्यूल. लेकिन जो मोल है उसको हम कभी भी नहीं फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है. जो इसकी वैल्यू होती है 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. तो उसको हम क्या करते हैं 1 मोल किसी भी चीज़ का है तो उसको हम इसी से शो करते हैं. इन नेक्स्ट
पेज, द नंबर ऑफ पार्टिकल the number of particles, atom, molecules present in 1 mole of any substance is fixed with the value of this. तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में तो कितने होंगे 6.022 10 टू द पावर 23. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू, ये एक एक्सपेरिमेंट की गई वैल्यू है. दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर. तो इस वाले जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर, एंड रिप्रेजेंटेड बाय n0. तो n0 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं. नेम्ड इन ऑनर ऑफ द लैटिन साइंटिस्ट एमिंडो एवोगैड्रो. तो एक साइंटिस्ट थे, उनके नेम के बेसिस पे ये रखा गया है. सो द वैल्यू ऑफ 1 मोल 6.0 10 टू द पावर 23 इन नंबर एंड 1 दर्जन. अब जैसे हम करते एग्जाम्पल से समझाते हैं, 1 दर्जन इक्वल टू 12 numbers and 1 gross 144 numbers. Beside being related to a number, a mole has one more advantage of over a dozen. The mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in gram. So for example, atomic mass of hydrogen 1 mu, gram atomic mass of hydrogen 1 gram. So hydrogen has only one atom of hydrogen and gram hydrogen has 1 mole of atom, that is 6.022 10 to the power 23 atoms of hydrogen. And for the number it is done by 1 mole equal to 6.022 10 to the power 23 number and relative mass in grams. So next page we understand some example. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, किसी भी कार्बन एटम का अगर हमें 1 मोल फाइंड आउट करना है तो वो कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 एटम. एंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 अपॉन 6.022 10 टू द पावर -23. तो क्या हो जाएगा, ये से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ से भी समझते हैं. आप देखो मॉलिक्यूल्स, अब मैंने अभी बताया जैसे इन हाइड्रोजन 5 मॉलिक्यूल्स एंड 10 एटम्स. बिकॉज हम यहाँ पर अगर 5 लेते हैं तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स कितने हैं 10 एटम्स हैं. और जो मोल कॉन्सेप्ट है उसे हम किससे उसकी यूनिट क्या होती है, देखो हर चीज़ की यूनिट होती है. जैसे लेंथ की मीटर होती है और फोर्स की न्यूटन होती है, वैसे ही जो मोल की यूनिट है वो क्या होती है, म्यू एंड ग्राम. वी यूज टू एक्सप्लेन मोल कॉन्सेप्ट म्यू एंड ग्राम. सो H2O मॉलिक्यूलर मास ये हमें निकालना आ गया था, हमने निकाला, इसकी वैल्यू 18 थी. एंड NaCl 58.5. सो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू द 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. सो अब देखो 1 दर्जन में 12 आइटम्स, हमें ये पता है 1 दर्जन में 12 होते हैं. सो तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 2 × 12 सो 24. ऐसे ही अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 मोल फैंस, 1 मोल फैन की वैल्यू कितनी होगी, 1 मोल फैन किसी भी चीज़ की अगर हम 1 मोल में निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.022 × 10 टू द पावर 23 फैंस. काउंटिंग फैन, हम यहाँ पे फैन को काउंट कर रहे हैं. ऐसी 2 मोल्स ऑफ चेयर या 2 मोल्स ऑफ फैन की कितनी हो जाएगी, 2 × 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. तो ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी. ऐसी 1 मोल ऑफ H2O में 1 मोल, जो 1 मोल ऑफ H2O अगर हमें फाइंड आउट करना है 1 मोल ऑफ H2O तो कितना होगा, 6.022 × 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2. ऐसे ही 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 6.22 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. तो हमें हमेशा याद रखना है, हमें किसी भी चीज़ का, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसकी 1 मोल फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, 6.022 × 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ऐसे ही अगर मैं हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इन मॉलिक्यूल्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 6.022 × 10 टू द पावर 23 अपॉन 2. तो वो उसकी वैल्यू निकल जाएगी. ऐसे ही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो हमें इसमें क्या निकालना है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हमें क्या निकालना, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 × इतना, एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो कितने हैं,
सेम, क्योंकि हाइड्रोजन में जो एटम्स हैं कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, 1 सपोज कर लेते हैं, तो कितने हो गए, 6.022 10⁻23 हो जाते हैं। So thank you for watching this video.